Namaste to everyone. My name is Srinivas Balaraju. I am a career counseling specialist. Welcome to our new episode in this section called Career Counseling Interview. Today we have a very special guest and he's also one of my friends from Belagavi. His name is Omkar Dalvi. He's an entrepreneur, also expert in digital marketing and social media expert. By qualification, he's a postgraduate in management. He runs his own venture, especially an agency named Vijomi Technologies Private Limited, where he is a consultant for digital marketing and building websites and all. And he also has a training institute named Viom, where he trains for digital marketing for young students. I like his vision, where his vision is to train the rural segments of India where the digital marketing is still lagging, and he wants to train the youngsters there into this segment of digital marketing. Namaste, Omkar sir, and welcome to this segment of career counseling. Namaste, Srinivas sir, and it's my pleasure to be on your channel. Namaste, sir. Thank you, sir. Sir, knowing you, what made you being a BSc graduate, right, then coming into digital marketing? So this will be an inspiration for others, where whatever is your background, you can still shift to become a digital marketer. You can just Exactly. So starting, I was into BSc. I did my graduation. उसके बाद मैंने MBA pursue किया from Bangalore University. ठीक है. So when I was in final year में जब मैं था, then I did one small project on digital marketing, and from that day I got interested in this field. In the field of digital marketing. So obviously I was not working in the field of digital marketing earlier. I got placed in Reliance Industry in the operations field. Okay, so वहाँ पे मैंने around 4 years काम किया in the field of operations. But side by side I was working with digital marketing as well. So I had started my blogging. So I kept learning into this field because I was having interest in this particular field. So उसके बाद I quit my job and started my own company. So earlier I started my company in Mumbai. तो मुंबई में पहले स्टार्ट किया. So as I belong from Belagavi, so I shifted my operations from Mumbai to Belgaum. So currently we have 4 branches. बेलगाम में एक है, कोल्हापुर में एक है, विजयपुरा में एक है, and गोवा में recently we have started in Porvorim. So that is my small journey. So my main objective is कि क्योंकि कैसे अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, एंड वी स्टार्टेड आवर इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ वीओम इंस्टीट्यूट. इसलिए हमने स्टार्ट किया कि क्योंकि हमें ही एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे बेलगाम जैसे लोकेशन में. ठीक है, मुंबई में वी वर हैविंग द एम्प्लॉयज, बट व्हेन वी शिफ्टेड आवर ऑफिस टू बेलगाम वी वर नॉट हैविंग एम्प्लॉयज, वी वर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयज. सो हमने ही स्टार्ट किया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे कंपनी के लिए हायर करना. तो उसके बाद हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, and then we continued it as a training institute. So abhi we are a well known institute in North Karnataka and South Maharashtra, and we were the first to start institute in this North Karnataka and South Maharashtra. So it's nice to hear this, sir. In this COVID situation, I think there are many people following you that they want their systems automated and also online. What is the situation these days, sir? I am sure that this situation is a blessing for you, not a curse for you. Especially people in this digital marketing field. Exactly. अभी कैसे देखो, कोविड सिचुएशन में सब ऑब्वियसली बहुत लोगों के जॉब चले गए. ठीक है, बहुत लोगों के पास काम नहीं था, बट हमारे पास इतना काम था कि एक्चुअली आवर पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट. ठीक है, क्योंकि बिकॉज एवरीवन गॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिजिटल मीडिया. उनको पता चला कि डिजिटल मीडिया कितना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज नो वन इज गेटिंग आउट ऑफ होम. राइट, अभी आप होर्डिंग लगाओगे, आपका बैनर लगाया है, आपने होर्डिंग्स लगाया है, बट कोई भी नहीं है आपका होर्डिंग्स देखने के लिए. बट यस,
they were consuming videos on YouTube, they were consuming data on Facebook and all, right? तो हम लोग ये social media का use करके we can reach to their those people or your target audience, ठीक है? तो इसका importance पता चल गया और बहुत सारे लोग क्या किए, they started shifting from traditional marketing to digital marketing. बहुत सारे colleges बोलो, institutes बोलो, obviously Zoom किसी को भी पता नहीं था, right? So now Zoom is a trending website. Right, तो सब लोगों को everyone has become now digital aware nowadays, right? So that's the thing. And sir, in simple way, you can explain the audience that how good is digital marketing than the physical marketing. Right. So I will start with basics. So first I will tell you what is digital marketing. So digital marketing is simply promoting your product or a services by using digital media. तो डिजिटल मीडिया आपका हो सकता है फेसबुक हो सकता है, बाय यूजिंग यूट्यूब हो सकता है. यूट्यूब में आपने स्किपेबल ऐड देखा होगा, राइट? सो दैट ऑल कम्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो ऑनलाइन मीडिया का यूज करके वी विल बी प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो मेन डिफरेंस क्या है? अर्लियर पीपल यूज्ड टू डू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो जाएगा आपका होर्डिंग लगाना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, टीवी एड्स चलाना, रेडियो जिंगल्स, दीज ऑल कम्स अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग. बट नाउ दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या आएगा? आपका फेसबुक प्रमोशन आएगा, यूट्यूब प्रमोशन आएगा, गूगल प्रमोशन आएगा, राइट? तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यू कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, वेयरएज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ ऑडियंस रहता है आपके पास, ठीक है? वी कैन टेक एग्जाम्पल इन बेलगावी इटसेल्फ, ठीक है? तो बेलगाम में तरुण भारत एंड विजय कर्नाटका या विजयवाणी न्यूज़पेपर ज्यादा चलता है. तो उनके सर्कुलेशंस हो सकते हैं होपफुली 1 लाख टू 1.5 लाख. तो सपोज इफ वी प्लेस आवर एड इन दीज न्यूज़पेपर्स, तो कितने लोगों तक पहुंचने वाला है? होपफुली अराउंड 1.5 या इंटू 2 पकड़ लो, घर के अगर कोई एक्स्ट्रा ने आपका एड देखा तो होपफुली योर एड इज रीचिंग अप टू 3 लाख पीपल्स, ठीक है? बट द सेम एड इफ यू प्लेस ऑन फेसबुक, तो फेसबुक एक ही लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए एग्जांपल. सो इन बेलगाम इटसेल्फ वी हैव अराउंड 6 लाख प्लस फेसबुक यूजर्स. तो इट्स अ ह्यूज ऑडियंस, राइट? तो यहाँ पे आपको 2-3 लाख ऑडियंस मिल रहा है और फेसबुक पे आपको 6 लाख ऑडियंस मिल रहा है. और यहाँ से आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा, ठीक है? मेरा एड कितने लोगों तक पहुंचा है, हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड माय एड्स एंड ऑल दोस स्टफ्स. ट्रेडिशनली वो पॉसिबल नहीं है. वी कांट ट्रैक आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? उसके अलावा क्या है, यहाँ से आप टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वेयरएज ट्रेडिशनली इट्स नॉट पॉसिबल. टारगेट ओरिएंटेड इन द सेंस, सपोज आप एक पिज्जा बर्गर स्टोर चला रहे हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट चला रहे हैं छोटा सा, तो आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए यंगस्टर्स. एज ग्रुप माइट बी 18 टू पकड़ के चलिए 30 मैक्स टू मैक्स, राइट? तो मेरा एड इन लोगों तक ही पहुंचना है. सपोज वो एड मैंने न्यूज़पेपर पे प्लेस किया, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन लोग हैं? मिडिल एज एंड हायर मिडिल एज. सो आई एम नॉट रीचिंग टू टारगेट ऑडियंस, राइट? तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ये फंक्शनैलिटी है कि आप पर्टिकुलरली एज ग्रुप फिल्टर कर सकते हो कि मेरा एड बस 18 टू 30 या 32 एज ग्रुप वालों को ही दिखाना है, या फिर दोज पीपल हु आर स्टेइंग इन बेलगाम, ठीक है, उनको ही दिखाना है, या पर्टिकुलरली तिलकवाड़ी में जो रह रहे उनको दिखाना है. वो मैं कर सकता हूँ. वो ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं है उतना टारगेट ओरिएंटेड. या फिर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, आप कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो सर? राइट. तो हम Amazon पे जाते हैं, कभी कभार क्या होता है, ऐड टू कार्ट में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं बट हम परचेस नहीं करते, माइट बी एनी रीजन, ठीक है? तो विद इन हाफ एन आवर आपको क्या होता है, सेम प्रोडक्ट आपको हर एक मीडिया पे दिखना चालू हो जाता है. आपके मोबाइल पे पॉपअप आएगा, आपके फेसबुक पे वही प्रोडक्ट दिखना चालू हो जाएगा, राइट? तो दिस गूगल स्टोर पे या हर जगह पे. सो दैट इज व्हाट रीमार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, रीटारगेटिंग द कस्टमर्स, ठीक है? तो इतना मतलब टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, वेयरएज ट्रेडिशनली वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और कभी भी आपके एड्स में आप चेंजेस कर सकते हो, वेयरएज तो ट्रेडिशनली वो पॉसिबल नहीं है. एक बार आपने होर्डिंग लगा दिया, वो चेंजेस करना मतलब इट विल कॉस्ट यू डबल कॉस्ट यू हैव टू इनकर, राइट? तो दीज आर मेन थिंग्स वेयर ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग डिफर्स. माय पर्सनल एक्सपीरियंस सर, मैंने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी डिजिटल मार्केटिंग में.
Right, When I sir. started the coaching, I do career counseling and also I have my coaching institute for banking, railway, and SSC. Right, sir. So from 2016 I started till 2019 end. I've done a lot of physical ads, sir. Hoarding se reke, pamphlet, newspaper. I've burned my money, literally. लेकिन जो switch 2020 में हुआ, when I entered into digital, it is Right. like 20x. इतने Right. लोगों को मैं reach कर पाया. I Exactly. could also do a lot of webinars. I have reached the whole Karnataka, some parts of Maharashtra also. इतने लोगों को मैं reach हो पाया. मेरी Right. appreciation मैंने सोच बस बेलगाम में ही नहीं रखा. I went out of the city. I got to know more. Many people got to know me. Like on 15th August, I'm also going to launch my product of online courses, Great, great, where great. you also know that I've worked very hard for that. So Right, all sir. this is possible because I understood this digital marketing concept. Exactly. A very important question, sir. As you have also explained, there is Instagram, Facebook, there is LinkedIn, there is Google. Right, sir. Which is the best platform? It depends on your product. ठीक है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है. सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ही पकड़ो सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट. ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसे है सर? अभी डिपेंड, अभी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अभी समझ के चलो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका एज ग्रुप रहेगा, टारगेट एज ग्रुप यंगस्टर्स ही रहेगी होपफुली. 18 to 30. 18 to 30. तो 18 to 30 एज ग्रुप को अगर रीच होना है तो आपको सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ठीक है, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स एंगेज्ड है. ठीक है, क्योंकि आजकल कैसे है सर, लोगों को वीडियो और इमेजेस, ठीक है, विजुअल कंटेंट पसंद है कंपेयर टू टेक्स्ट कंटेंट, राइट. और इंस्टाग्राम वो लोगों को प्रोवाइड करता है. वहाँ पे वीडियोस है, इमेजेस है, और यंगस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम पे ही टाइम स्पेंड करते हैं. तो इंस्टाग्राम विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली फेसबुक पे भी है, बट इंस्टाग्राम पे यंगस्टर्स ज्यादा एंगेज्ड है. ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो. जैसे अभी और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. समझ के चलिए, आई हैव अ क्लाइंट फ्रॉम B2B सेगमेंट, बिजनेस टू बिजनेस में डील करता है. ठीक है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ठीक है, कास्टिंग का कुछ तो बिजनेस है उनका. तो अगर कास्टिंग का प्रोडक्ट आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली इट वोंट वर्क, राइट. क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि बाबा ये प्रोडक्ट किसके लिए यूज होता है एंड ऑल दो स्टफ. तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म विल बी द सर्च इंजिन्स, जैसे कि गूगल. अभी समझो किसी को कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, ही विल सर्च ऑन गूगल. ठीक है, कास्टिंग मैन्युफैक्चरर या जो भी है कंपनीज इन बेलगाम, तब मेरे वेबसाइट का नाम गूगल के टॉप लिस्टिंग पे आना चाहिए. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर. ओके, अभी और एक एग्जांपल देना चाहूंगा. अभी हमारे एक कस्टमर है, बिल्डर एंड डेवलपर है. दे सेल लग्जरियस फ्लैट्स, और उनका फ्लैट स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम 60 लाख से स्टार्ट होता है. ठीक है, मिनिमम 60 to 65 लाख. ठीक है, तो वहां पे उनका एड मुझको यंगस्टर्स को दिखाने के लिए मतलब ही नहीं है. तो वहां पे मैं एज ग्रुप क्या फिल्टर कर सकता हूँ, तो आई कैन कंसिडर द एज ग्रुप. एग्जैक्टली 32 आई कैन हैव मिनिमम, 32 to 33. ठीक है, क्योंकि एक लोग इन्वेस्टमेंट वहां से देखते हैं. ठीक है, 33 प्लस एज ग्रुप आई विल टेक, एंड आई वोंट शो देयर एड्स ऑन इंस्टाग्राम. आई विल शो ऑन फेसबुक देन इंस्टाग्राम. ठीक है, क्योंकि फेसबुक पे मिडल एज, थोड़े बहुत सीरियस ऑडियंस वहां पे रहते हैं कंपेयर टू इंस्टाग्राम. ठीक है, तो वैसे आई कैन टारगेट इट अकॉर्डिंगली. फिर आई कैन टारगेट आईफोन यूजर्स, जो आईफोन 10 यूज करता है, उसको ही मेरा ऐड दिखाना है. बिकॉज या आपका फ्लैट वाला, लग्जरियस फ्लैट वाला. हाँ, वही तो, पैसे वाला है तो पैसे वाला है ऑब्वियसली, राइट. अभी आईफोन 10 जो 1 लाख का फोन अफोर्ड कर सकता है, ऑब्वियसली ही कैन अफोर्ड 60 लाख का फ्लैट, राइट. तो इतना टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग हम लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल ट्रेडिशनली, राइट. स्पेशली थोड़ा यंगस्टर्स को आपको मोटिवेट करना चाहिए. तो they are consuming a lot of data in just adding, sharing their own profiles, exactly, and just hunting for likes. Exactly. Instead of becoming a consumer, they should try to become some creators. At least exactly. try. है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट आपका निश पता चलेगा कि यार there are people who are liking me. एग्जैक्टली. अभी यहाँ पे कैसे है सर, अवेयरनेस लेवल बहुत कम है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हम लोग बात करेंगे, इवन आई विजिट मेनी कॉलेजेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स. ठीक है, तो वहाँ पे MBA कॉलेजेस ले लो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लो, वहाँ पे लगभग 200-300 बच्चे होते हैं मेरे वर्कशॉप में. वहाँ पे बस 1-2 लोगों को ही पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या,
क्योंकि अगर व्हेन इट कम्स फॉर मार्केटिंग, पीपल थिंक्स दैट मार्केटिंग इज अ सेल्स। ठीक है, उनको लगता है अरे मुझको जाके किधर तो कुछ तो बेचना पड़ेगा, डोर टू डोर सेलिंग करना पड़ेगा। वो जमाना चला गया, इट्स ऑल वेंट राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना है, बस इवन इफ यू हैव अ स्मार्टफोन और लैपटॉप, वही से यू कैन जनरेट अ सेल्स फॉर योर बिजनेस राइट। और अवेयरनेस लेवल अभी तक बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था नवंबर 2019, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दर डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं हो रहा है। मार्केट में डिमांड तो इतना है डिजिटल मार्केटिंग में, बट सप्लाई ही नहीं है स्टूडेंट्स का, बिकॉज अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम। सर मैं भी बहुत ढूंढा एक टाइम में, मिले ही नहीं। राइट, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो वही है सर, डिमांड तो है मार्केट में। और कैसे है आजकल डिजिटल मार्केटिंग ईच एंड एवरी कंपनी को नेसेसिटी है, वेदर वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। अभी एमएनसीज भी आप जाओगे, उनका एक डिजिटल मार्केटिंग का अलग से टीम ही होता है। ठीक है, तो वहां पे भी करियर कर सकते हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स है, दे आर वर्किंग विद फ्लिपकार्ट, सम आर वर्किंग विद सिंपली लर्न राइट, सम आर वर्किंग विद एमएनसीज, बहुत सारे कंपनीज some are using to promote their business, एग्जैक्टली सम आर यूजिंग टू प्रमोट देयर बिजनेस। ठीक है, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग में आपको करियर करना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी या एज ग्रुप मायने नहीं रखता। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट यू कैन मेक करियर इन दिस फील्ड। और जॉब ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यही था कि बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है इसमें? बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है सर। ठीक है, 10th का बच्चा भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, 12th का भी कर सकता है, ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑब्वियसली इफ ही इज लुकिंग आउट फॉर जॉब्स तब उसको ग्रेजुएशन तो मिनिमम लगेगा। बट इफ ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग करना चाहता है या यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बस जॉब के लिए नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जॉब ही कैन स्टार्ट हिज ओन ब्लॉगिंग, खुद का वेबसाइट बना सकता है और वहां से अर्निंग कर सकता है। ठीक है, या फिर खुद का यूट्यूब चैनल बना सकता है। वहां से यू माइट हैव हर्ड यूट्यूब से हम crores of rupees वी कैन अर्न राइट। तो इवन ही कैन अर्न, ही और शी कैन अर्न राइट। तो ही कैन बिकम अ इन्फ्लुएंसर। यू माइट बी नोइंग विराट कोहली सबसे ज्यादा पैसे लेता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में इंडिया में। ही टेक्स अराउंड 1.35 CR जस्ट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। एक सिंगल पोस्ट डालने के लिए इट टेक्स 1.35 CR। तो उतना ब्रांड्स उसको पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इतने लोग फॉलो करते हैं उसको। ही इन्फ्लुएंसेस द मासेस राइट। तो आप भी वैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऑब्वियसली विराट तो बहुत बड़ा हो गया। अभी हमारे एक क्लाइंट है, ठीक है, मैम है, शी इज डॉक्टर एक्चुअली, कॉस्मेटिक सर्जन है मैम। ठीक है, सो इवन शी वर्क्स एज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे लगभग 25,000-30,000 फॉलोअर्स है उनको। ठीक है, तो वहां पे मैम को क्या होता है, कॉस्मेटिक्स जो ब्रांड होते हैं दे विल अप्रोच हर। वो बोलेंगे कि मैम ये हमारा सोप है, बस इसका एक फोटो शूट करके आपके इंस्टाग्राम पेज पे आप पोस्ट कर दो, इसके लिए हम आपको 10,000-15,000 पे करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो शूटिंग भी वही लेंगे, फोटो शूटिंग एंड ऑल। बस इनको क्या करना है, फोटो शूट वो यहाँ पे पोस्ट करना है। तो इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं इनको, इतना पैसा क्यों मिल रहा है? बिकॉज 35,000 पीपल आर फॉलोइंग हर। ओके, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर वी वर प्रमोटिंग वन कन्नड़ा मूवी हम लोग प्रमोट कर रहे थे। सो एज अ एजेंसी हमने क्या किया, कर्नाटका में जो भी कन्नड़ा मूवी रिलेटेड पेजेस है, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस है, उनको हमने पर्सनली अप्रोच किया। ठीक है, तो हमारा ऐसे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, जस्ट यू पोस्ट ऑन योर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, तो कोई लोगों ने फ्री में किया, कोई लोगों ने दे टुक अराउंड 8,000 रुपीज, किसी ने 5,000 लिया। ठीक है, जस्ट टू पोस्ट सिंगल वीडियो, दैट्स इट। तो हमने उनको पे क्यों किया? क्योंकि उनके पास उतने ऑडियंस थे। ठीक है, तो इवन यू कैन स्टार्ट योर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करियर कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। और डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे नहीं कि बस जॉब के अलावा यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग बिजनेस। घर में बैठ के भी यू कैन वर्क एज एन डिजिटल मार्केटियर। आप यूएस के, अभी देखो मेरे पास वी हैव अराउंड 10-12 क्लाइंट्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अभी मैं कभी यूएसए नहीं गया, बट बाय सिटिंग एट बेलगाम ओनली आई हैव टेकन दोस प्रोजेक्ट्स। सो इवन दे कैन टेक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज हमारे लिए लिमिटेशंस नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे ओमकार तू इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है, यू विल बी मतलब आपका ही कॉम्पिटिटर आप यहाँ पे खड़ा करोगे बेलगाम में। क्योंकि उस जमाने में आई वॉज द ओनली वन
ठीक है, वी वर द ओनली वन हु वर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सर्विसेज इन बेलगाम। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, तो मैंने बोला अरे मेरा बस बेलगाम मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है या टारगेट मार्केट नहीं है, होल ग्लोब इज माय टारगेट ऑडियंस। तो घर में बैठ के आप कहीं से भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, तो इट्स लाइक अ ओशन। वो तो है। ठीक है, तो ऐसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सर, इवन आई एम लर्निंग दिस, ओके, out of all social media, I think youngsters should spend more time on LinkedIn, it is said. Exactly. But people are not, like even I am not, I have just created it. Okay. मेरे को LinkedIn में अभी उतना डीप गया नहीं हूँ सर। उसके बारे में थोड़ा बात करो। LinkedIn as a students, या students बोलो या someone who is searching for jobs and someone for a businessman, how LinkedIn is different from Facebook, Insta? Exactly. LinkedIn कैसे है सर? LinkedIn is प्रोफेशनल सोशल मीडिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ टाइम पास जैसे कि मेम्स आया, ये आया, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरीवन मीन अ बिजनेस ऑन लिंक्डइन, ठीक है, एवरीवन मीन अ बिजनेस। इट मींस अभी समझो आई एम ए एचआर रिक्रूटर, तो मैं लिंक्डइन पे क्यों हूँ? मुझे जॉब सीकर चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम ऑन लिंक्डइन। समझो आई एम अ बिजनेसमैन, मैं लिंक्डइन पे क्यों हूँ? मुझको नेटवर्किंग बढ़ाना है लिंक्डइन पे अदर बिजनेसमैन के साथ, ठीक है। अगर मैं जॉब सीकर हूँ तो वहां पे मुझको जॉब चाहिए, इसलिए हूँ, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट कंपलसरी हमारा लिंक्डइन अकाउंट होना जरूरी है, राइट? क्योंकि आजकल वो जमाना गया, पहले क्या होता था, पीपल यूज्ड टू गो टू कंपनीज, दे यूज्ड टू गिव देयर बायोडेटा एंड ऑल दो स्टफ्स, राइट? अभी वो जमाना चला गया। अभी एचआर आपको क्या बोलेगा? काइंडली प्लीज शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उसका लिंक आप शेयर कर दो बोलेंगे, और लिंक्डइन पे ही आपका पूरा फिर डिटेल्स रहेगा, आपका सर्टिफिकेशंस, तो इट शुड लुक प्रोफेशनल। तो लिंक्डइन पे आपका सेल्फी वाला फोटो वैसा नहीं होना चाहिए, आपका जो प्रोफाइल इमेज चाहिए इट शुड लुक प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल एक प्रोफाइल इमेज चाहिए। फिर आप जो वहाँ पे बायो करके होता है, बायो में आप लिखना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग आउट फॉर, व्हाट यू वांट फ्रॉम लिंक्डइन। सपोज कोई तो अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है, ही इज अ जॉब सीकर इन फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पे बायो क्या लिखेगा? आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर सीकिंग अ जॉब इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे ही एचआर उसका प्रोफाइल देखेगा, एचआर को पता चलेगा ओके ही इज सीकिंग अ जॉब इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर वो रहेगा तो ही एचआर कैन ऑफर अ जॉब टू हिम, और इवन वाइस वर्सा ही कैन अप्लाई अ जॉब। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेरियस कंपनीज जैसे एक्सेंचर लो, IBM लो, वहाँ पे उनके पेजेस होते हैं, जैसे फेसबुक पेजेस होते हैं, इवन लिंक्डइन हैज अ पेजेस, ठीक है। तो आपका कोई अगर ड्रीम कंपनी है, इफ यू वांट टू वर्क इन सम ड्रीम कंपनी, सो स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑन लिंक्डइन। क्योंकि Naukri.com, Monster.com पे पोस्ट करने से पहले वो लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, कोई अगर ओपनिंग्स रहेगा तो, ठीक है। तो वहां पे आपको नोटिफाई हो जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग एक्सेंचर, और एक्सेंचर में डिजिटल मार्केटिंग का वैकेंसीज आ गया तो इमीडिएटली आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो वहीं से आप अप्लाई नाउ बटन होता है, यू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, वहीं से आपका प्रोफाइल उनके एचआर को चला जाएगा। अच्छा। तो अगर आपका प्रोफाइल फिट हो रहा है तो यू कैन गेट अ गुड जॉब एज वेल। हाउ अबाउट मार्केटिंग इन लिंक्डइन? या मार्केटिंग के लिए भी अभी देखो, आई विल कम टू नाउ बिजनेस पार्ट, ठीक है। तो एज अ बिजनेस पार्ट, अभी मेरा ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। आई वाज लुकिंग आउट फॉर द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूएसए और कनाडा, ठीक है। तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स में देख रहा था, तो देन व्हाट आई डिड, तो मैंने नेटवर्किंग किया वहाँ से, जो यूएस में सीईओज है, डायरेक्टर्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे मैंने नेटवर्किंग का रिक्वेस्ट भेजा। जैसे हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, सिमिलर वे you have to introduce yourself and send them the request, connection request, ठीक है। तो एक बार हम कनेक्शन में आ गए तो वहां पे एक चीज होता है इन मेल करके, जैसे मैसेंजर होता है फेसबुक पे, सिमिलरली लिंक्डइन पे इन मेल। तो वहां से आपका जो भी है सर्विसेज उनको आप पिच कर सकते हो कि आई एम ओमकार दलवी, आई रन सो एंड सो कंपनी एंड आई कैन प्रोवाइड यू सो एंड सो सर्विसेज, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर दिस सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट अवर टीम, ठीक है। तो वहां से भी आपको बिजनेस मिल सकता है, ठीक है। प्लस वहां पे अगर इफ यू वांट टू रन अ पेड एड्स भी हम लोग चला सकते हैं वहां से, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्रीम लेयर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए सर, सीईओज है या डायरेक्टर्स है, दे आर नॉट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके पास उतना टाइम नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर ऑन लिंक्डइन पे वो अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के सीईओ, सीटीओ, ये जो क्रीम लेयर आप बोलते हो, हायरार्की टॉप लेवल का, उन तक पहुंचना है तो लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो
एज अ स्टूडेंट अगर आप हो तो कंपलसरी आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है नाउअडेज, ठीक है। मैं एक्चुअली एक वीडियो का प्रिपरेशन किया था सर, wherein I am going to make a video on some 15 skills where you should learn under 20, and even digital marketing is one, and because that too in this age where everyone is locked, I think digital marketing कहीं से भी सीख रहा है, लेकिन सीखना important है, क्योंकि when you grow up, अब 26, 27, 28 में जब आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, तो ये स्किल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। राइट सर, यू शुड एनकरेज स्टूडेंट्स सर कि ये जो पीरियड है, यू नो, कि इस पीरियड से आप उभर के आ सकते हो, ऐसी चीजें सीख। राइट सर, क्योंकि कैसे देखो अभी एवरीवन इज सिटिंग इन द होम, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, राइट। सो देयर इज वन पॉपुलर सेइंग, एक सेइंग है, हम लोग बोलते हैं बी देयर वेयर योर कस्टमर्स आर, राइट। तो अभी मेरे कस्टमर्स कहाँ पे है? दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर ऑन यूट्यूब। तो एज अ बिजनेस आई शुड हैव प्रेजेंस ऑन दीज मीडियाज। अगर मेरा अभी कैसे, अगर हमारे फील्ड में आप बोलोगे, अगर आपका यू आर रनिंग अ बिजनेस और आपका बिजनेस का नाम गूगल पे आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स योर बिजनेस डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि गूगल इज फर्स्ट इंप्रेशन नाउअडेज। जो भी है पहले लोग गूगल सर्च करेंगे, देन दे विल कम टू योर वेबसाइट और व्हाटएवर, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, हमारा प्रेजेंस हर एक डिजिटल मीडिया पे होना चाहिए एज अ बिजनेस, ठीक है। और कमिंग टू स्टूडेंट्स को अगर आप देखोगे तो देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज। अभी मैं परसों ही देख रहा था naukri.com पे, ठीक है, आई वाज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, कितने जॉब ओपनिंग्स है। इवन एट दिस सिचुएशन देयर आर अराउंड 32,000 जॉब वैकेंसीज इन इंडिया, ठीक है, परसों की बात है, ठीक है, 32,000 वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। एंड बाय 2022, ठीक है, बाय 2022 अराउंड 2.5 लाख जॉब ओपनिंग्स होने वाले डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। और जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, दिस इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 40% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अभी मेरे पास जो सर स्टूडेंट आ रहे हैं, दे आर वर्किंग विद गुड कंपनीज इन बेलगाम इटसेल्फ, दे आर वर्किंग विद अशोका है, बहुत सारे कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बट अभी उनको भी पता चल चुका है कि बाबा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, मेरा जॉब कभी भी जा सकता है, ठीक है, इट्स नॉट सिक्योर। सो दैट्स द रीजन दे आर स्विचिंग देयर फील्ड इटसेल्फ, वेदर देयर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अभी आपको लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस आई कैन शेयर यू, देयर वर 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ऑलरेडी उधमबाग में अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे थे, एंड दे ऑल वेर मैकेनिकल इंजीनियर्स, बी मैकेनिकल, ठीक है। तो उनको पता चला कि बाबा ऐसे ऐसे मेरा मतलब कंपनी का कभी भी मुझको निकाल सकते हैं जॉब से, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री सही से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने भी रिसर्च किया, दे कम टू मी, दे जॉइन माय कोर्स, ठीक है। और लॉकडाउन से पहले दे गॉट ऑल, मतलब हर चारों लोगों को सबको जॉब लग गया। एक को अपोलो टायर्स में लग गया एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक को और एक कंपनी में लग गया, ठीक है। सो बिफोर लॉकडाउन दे जॉइन द कंपनीज और वो बेलगाम आ गए। बट इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड उनका सैलरी चलता रहा, वो बाय वर्किंग फ्रॉम होम दे आर अर्निंग, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम उनको दे दिया है और घर से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, ऐसे नहीं कि आपको ऑफिस ही जाना है एंड यू नीड टू वर्क, इवन यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। एक बार आपका ट्रस्ट गेन हो गया कंपनी से, ऑब्वियसली दे कैन गिव यू वर्क फ्रॉम होम, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज है। और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, और एक मेरा स्टूडेंट है प्रसाद सांबरेकर करके, ठीक है। तो ही वाज आल्सो बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स था, और 1 साल बेचारे को जॉब ही नहीं था। तो किसी ने ऐसे ही सजेस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, तो वो आया हमारे पास, ज्वाइन किया, पुणे में उसको जॉब भी लग गया। सो एज अ फ्रेशर ही यूज्ड टू गेट अराउंड 23,000 रफली, ठीक है, मंथली। तो साथ साथ उसने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए नहीं सिखाते, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, क्यों, भले ही तो उसको जॉब ना मिले फिर भी तू भूखा नहीं मरना चाहिए, ठीक है, भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट किया साइड बाय साइड। 6 महीने के अंदर ऐसे हो गया, वो सैलरी से ज्यादा फ्रीलांसिंग से अर्निंग ज्यादा करने लगा, ठीक है। तो वो करते करते ही गॉट वन गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम यूएसए से एक अच्छा प्रोजेक्ट उसको मिल गया। उसने फिर जॉब क्विट किया, दांडेली से बिलोंग करता है वो लड़का, ठीक है, और वो घर बैठे उनके लिए काम करने लगा। तो उन्होंने बोला कि फुल टाइम तो हमारे लिए काम कर। सो विद इन 1 ईयर उसका सैलरी हो गया 46,000,
तो उन्होंने इंडिया हेड करके उसको हायर किया, ठीक है, उसके अंदर अभी 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो 1 साल के अंदर उसको 46,000, मतलब ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर करियर अपॉर्चुनिटीज यू कैन हैव। यू कैन वर्क एज एन फ्रीलांसर, ब्लॉगर हो सकते हो, यू कैन वर्क एज एन डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अगर आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो यू कैन वर्क एज एन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। वहां पे आपका काम होगा सोशल मीडिया से बिजनेस जनरेट करना कंपनीज के लिए, ठीक है। यू कैन वर्क एज एन ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आजकल ये भी बहुत डिमांड में चल रहा है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे कि पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज है, पब्लिक फिगर्स है, उनका रेपुटेशन यू विल बी मैनेजिंग ऑन ऑनलाइन मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी अगर कोई गूगल पे डालेगा, उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी कुछ नहीं आना है गूगल पे, ठीक है। तो ये जो सारा काम रहेगा वो ORM मैनेजर्स का रहेगा, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर्स। तो वहां पे भी आप करियर बना सकते हो। या फिर अभी सेलिब्रिटी है अक्षय कुमार के पास टाइम नहीं है उसका सोशल मीडिया वो सब हैंडल करने के लिए, उसके बिहाफ में उसका टीम काम करता रहता है, राइट। तो वहां पे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर्स काम करते रहते हैं। सो इवन दैट अपॉर्चुनिटी यू हैव। सो यू हैव हेल लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। इट्स लाइक अ ओशन, ठीक है। जहां पे आप जाना चाहते हो ना, यू कैन गो अहेड विद। और यहाँ पे आपको अगर करियर करना है तो आपको कुछ ऐसे नहीं कि यू शुड बी वेल वर्स्ड इन कोडिंग आना चाहिए, ठीक है, मेरा BIT होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। इफ यू नो फेसबुक, इफ यू नो गूगल, आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो तो यू कैन मेक अ गुड करियर इन दिस फील्ड। You are an example. You are a BSc and MBA. And MBA. You are Yes. nowhere related to No. this technological. Exactly. फिर ठीक है, तो उसके लिए कुछ ये नहीं है, ठीक है, आपका कुछ यही क्वालिफिकेशन चाहिए या यही फील्ड चाहिए, बस आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। आपका पैशन एंड इंटरेस्ट रहेगा तो यू कैन। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि I have observed, you know, even if you learn digital marketing, but if you don't have interest and creativity in you cannot achieve more. जितना क्रिएटिव हो प्लस ये नॉलेज मिला के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कैसे है सर, ऐसे नहीं कि बस स्टूडेंट्स ही कोर्स कर सकते हैं, इवन हाउस वाइफ्स कैन डू, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाउस वाइफ्स भी कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स उनका खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कुकिंग चैनल ही ओपन करो, ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग दे कैन अर्न, मतलब साइड बाय साइड they can support their husband as well in earning and all, और उनका हॉबी भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाउस वाइफ्स कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं टू ग्रो देयर बिजनेस, स्टूडेंट्स कैन जॉइन दिस कोर्स, राइट। सो देयर इज नो सच लिमिटेशंस, क्योंकि अभी ऐसा है, अभी देखो, अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब से आया है, डिजिटल इंडिया कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया, राइट। सो डिजिटल इंडिया कैंपेन क्या है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हर एक को डिजिटल प्रेजेंस सबको पता होना चाहिए, डिजिटल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, सब उन्होंने गवर्नेंस लाया, राइट। सो अभी कैसे हो गया, डिजिटल मीडिया ये बस प्रमोशन के लिए नहीं हुआ है, दिस हैज बिकम अ मूवमेंट नाउ। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, दिस इज अ डिजिटल मूवमेंट एंड दिस इज द राइट टाइम टू गेन द स्किल्स, ठीक है। तो ऐसे, एंड कमिंग टू इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स है वर्ल्ड में, ठीक है, आफ्टर चाइना इज फर्स्ट, थैंक्स टू जियो। एक्चुअली जियो जब से आया है, डेली 1 GB डेटा फ्री, तब से ज्यादा हो गया सर, अभी तो 2 GB हो गया, ठीक है, बट कंजम्पशन बढ़ गया और इंडिया होपफुली फर्स्ट नंबर पे भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इफ एनी कंपनी इफ दे वांट टू प्रमोट, दे हैव टू कम ऑन डिजिटल मीडिया, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल, अभी थम्सअप का एक ऐड आता है टेलीविजन पे, रणबीर सिंह का, ठीक है। रणबीर सिंह यहाँ से वहां जंप मारता है, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर छोटा सा बॉटल, थम्सअप की बॉटल के लिए, राइट। तो वो ऐसे ही जंप नहीं मारेगा, उसको crores of rupees देंगे एज अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो आपको उसको crores of rupees देने हैं, प्रोड्यूसर को देने हैं, चैनल वालों को देना है। सो इट कॉस्ट यू crores of rupees टू रन एड ऑन टेलीविजन, राइट। बट अभी आप यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल, आप कोई तो सीरियल या मूवी देख रहे हो टीवी पे और एड आ गया, व्हाट यू डू, चैनल चेंज करेंगे। 80% लोग यही करते हैं सर, ठीक है, दे स्किप द चैनल। तो यहाँ पे करोड़ रुपए खर्च करके आपका एड वहां पे व्यू करने के लिए कोई भी नहीं है, देयर आर नो व्यूअर्स, राइट। तो ये आजकल क्या है, ब्रांड को पता चल गया है कि बाबा अरे मैं करोड़ों रुपए खर्च तो कर रहा हूँ बट देयर इज नो वन टू वॉच माई एड्स। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, डिजिटल मीडिया। ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपके पास स्किप का ऑप्शन है, बट व्हेन यू कैन स्किप,
आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड थोड़ा तो देखेगा ही देखेगा। 5 सेकंड बहुत हो गया सर ब्रांडिंग करने के लिए, राइट? और अगर किसी को पसंद आ गया वो कंटिन्यूसली देखेगा। एंड देयर आर सम एड्स यू कांट स्किप, वो स्किप का ऑप्शन ही नहीं आता। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऐड आप स्किप नहीं कर सकते, वो देखना ही पड़ता है। तो दैट्स द रीजन नाउ कंपनीज आर स्पेंडिंग मोर ऑन इंटरनेट मीडिया रादर देन टेलीविजन मीडिया, राइट? तो इंटरनेट मीडिया पे स्पेंडिंग बढ़ गया, इसका मीनिंग क्या है? स्किलफुल लोग भी रहेंगे मार्केट में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाते, पढ़ाते भी है तो बस थेरोटिकल पार्ट, एक 2-3 टॉपिक रहेगा, हो गया उतना ही, ठीक है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा वास्ट चीज है और ये आपको प्रैक्टिकली आना जरूरी है। कॉलेज तो भूल ही जाओ सर, उसके बारे में बात ही नहीं करते, सीखते ही नहीं। एग्जैक्टली, राइट? सर ये कुछ नहीं होता उधर। आजकल लोग कमाते हैं ऐसे छोटे छोटे 1 महीना 2 महीने का कोर्स से। एग्जैक्टली 2-3 महीने में लाइफ ही बदलता है, वो 3 साल 4 साल में वाट लगता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप अगर ये स्किल्स गेन करोगे ना तो इंडिपेंडेंटली आप रह सकते हो, भूखे नहीं मरोगे उतना गारंटी है, ठीक है? कहीं पे भी यू कैन सर्वाइव, वेदर इट्स इंडिया हो, यूएसए हो, आप किधर भी जाओ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ग्लोबली आप कहीं पे भी करियर कर सकते हो। स्पेशली टेलीविजन ऑडियंस आर शिफ्टिंग टू डिजिटल, एड्स ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, टेलीविजन पे नहीं हो रहा है, राइट? और इंटरनेट पे स्पेंडिंग बढ़ रहा है, मतलब स्किलफुल लोग भी रहेंगे मार्केट में, राइट? स्किलफुल लोग रहेंगे मतलब ऑब्वियसली हायरिंग भी बढ़ रहा है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो दे आर लुकिंग, इसलिए डिमांड तो है मार्केट में बट सप्लाई नहीं है, ठीक है? सो दैट्स द थिंग। So what is the best learning way, sir? ये ऑनलाइन ऑफलाइन में कंफ्यूज्ड है। अभी there are 2 kinds of students. One have started learning online. Second, they are finding reasons कि जब लॉकडाउन खत्म होगा पूरा, जब कोविड भाग जाएगा, तब मैं सीखूंगा ऑफलाइन, मेरे को ऑनलाइन सीख नहीं सकता मैं। आप क्या बोलते हैं? अभी कैसे है सर, वो जमाना चला गया, ठीक है? अभी ऑनलाइन, अभी हाउ वी आर स्पीकिंग, राइट? इंटरेक्टिव सेशन है, सो ऑनलाइन में भी इंटरेक्टिव सेशन ही रहेगा। यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी 2 टाइप्स है, एक तो रहेगा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और दूसरा रहेगा ऑनलाइन वेबिनार्स, राइट? लाइव क्लासेस। तो वी हैव अ ऑप्शन ऑफ लाइव क्लास। अभी इस कोविड में हमने क्या किया, ओके, रिकॉर्डेड भी रहता है हमारे पास और लाइव क्लास, दोनों भी ऑप्शन वी कैन हैव इट। बट किसी को क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन पसंद नहीं है, दे वांट 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है? तो दे कैन ज्वाइन लाइव क्लासेस अदर देन गोइंग टू 1 वे कम्युनिकेशन वाला, ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो। इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है? तो ऐसे कुछ नहीं है कि ऑफलाइन ही सीखना है, ऑनलाइन नहीं सीखना है, ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो। अभी जैसे अभी मैं लेता हूँ सर, मेरे अभी दिन में 3 वेबिनार्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन 3 मेरे क्लास रहते हैं, ठीक है? और इस सिचुएशन में तो कोविड में तो मेरे 4 बैचेस थे, मॉर्निंग 2 इवनिंग 2, राइट? तो वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स गोवा से है, पुणे से, दुबई से 2-3 है, राइट? तो ऐसे अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स हैं और दिस विल बी लाइक लाइव इंटरेक्टिव सेशन। वहाँ पे जो भी रहेगा, आपका डाउट रहेगा, वहीं पे आप क्लियर कर सकते हो और एट द एंड उनको हम लोग रिकॉर्डिंग्स भी भेज देते हैं, ठीक है? तो आजकल वो जमाना गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन इज बेटर नाउ एंड सेफर एक्चुअली इन दिस कोविड सिचुएशन। कोई चीजें हम मिस किए उसको रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं, एग्जैक्टली। हमारा कंसंट्रेशन हमेशा वहां नहीं है ना, हम बैठे रहते यहाँ, हम सोचते हैं मुंबई के बारे में, है ना? राइट, हो सकता है कि यू नो रिकॉर्डेड थिंग्स आर समटाइम्स बेटर, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज किसी का लर्निंग, यू नो, विजुअल लर्निंग थोड़ा स्लो होता है, राइट? ऑडियो लर्निंग थोड़ा फास्ट होता है, राइट? सबको ये यूज हो सकता है, क्योंकि वो पीछे जाके नोट्स बना के फिर अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं। राइट। और अभी अभी जैसे आप है या मैं हूँ, अभी हमारे लिए ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, वी कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है? अभी ऑनलाइन इतने, अभी जूम आ गया, बहुत सारे, गूगल मीट ने फ्री किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां से हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी फ्री सोर्सेस, ठीक है? अगर कोई इंस्टीट्यूट ओनर है या ट्रेनर है, इवन दे कैन स्टार्ट डूइंग दिस ऑनलाइन क्लासेस नाउ, ठीक है? इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है? तो ऑब्वियसली दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस फील्ड। इवन अभी छोटे छोटे स्कूल्स के केजीज और प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स भी दे आर स्टडी गिविंग देयर ट्यूटोरियल ऑन दिस ऑनलाइन फील्ड, राइट? तो दिस इज इसका रियलिटी भी पता चल रहा है सर अभी, राइट? इसका वैल्यू पता चल गया सर अभी सबको। टीचर्स खुद प्रिपेयर होके आ रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड चीजें हैं, पेरेंट्स देखेंगे टीचर्स कैसे है, हर चीज पता चल रहा है, राइट? तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी
in this digital world than negativity, है ना? Yes, yes, You know, yes, 80% बहुत positive है than offline. हाँ, exactly. ऑफलाइन में वन ऑन वन होता है, वो अलग बात है. Like learning online and meeting once in a while is far better. Yes, yes, far better. And this COVID situation में तो we can Yeah, that is that. 100% online is the best platform. Yeah. ठीक है. Yeah, sir. And I think we have got a lot of inputs from you on this field of digital marketing. Any last words, sir? आपको कुछ बोलना है? We are into the end of this meeting today. कुछ last words है आपके स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को मोटिवेट करना है, कुछ भी बोल सकते हैं. नहीं, स्टूडेंट्स को वही बोलना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ बेस्ट फील्ड. यहाँ पे आप करियर बना सकते हो. ठीक है, ठीक है. ऐसे नहीं कि वो मेरे इंस्टीट्यूट से ही सीखो, कहीं से भी सीखो, बट एटलीस्ट यू लर्न दिस स्किल्स. ठीक है. और ऑब्वियसली ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, फ्री में भी यू कैन स्टार्ट लर्निंग विद. ठीक है, ठीक है. एडवांस लेवल के लिए आपको सीखना है तो ऑब्वियसली वी आर हियर, ठीक है, टू टीच यू एडवांस लेवल, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट समथिंग. ठीक है. आप ऑब्वियसली फेसबुक पे यू आर स्पेंडिंग टाइम, इंस्टाग्राम पे यू आर स्पेंडिंग टाइम, राइट, बट वहां से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो ये बच्चों को अभी तक पता नहीं है. ये इम्पोर्टेंट है. एंड दिस फील्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. यहाँ पे आप बोर नहीं हो जाएंगे. बच्चे तो बोर हो गए ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. ठीक है. तो बोरिंग यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कि आपको कोडिंग करना है या किधर डोर टू डोर जाके सेल करना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. तो एज अ करियर आप ये चूज कर सकते हो, एंड दिस इज अ राइट टाइम टू गेन दिस स्किल्स. ठीक है. एज अ स्टूडेंट्स एज वेल एज अ बिजनेस ओनर. अगर बिजनेस ओनर का प्रेजेंस नहीं है डिजिटली तो दे हैव टू मेक देयर प्रेजेंस. इट्स अ हाई टाइम नाउ. ठीक है. आजकल कोई होर्डिंग आपका नहीं देखेगा या कोई पैम्पलेट नहीं देखेगा, बट अगर आपका प्रेजेंस फेसबुक पे है, गूगल पे है, तो दे कैन रीच यू. राइट. तो यहाँ से आपका कम्युनिकेशन लेवल भी फास्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको सेल्स लीड्स जनरेट हो सकता है. राइट. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी याद आया सर. यस सर. आजकल व्हाट्सएप कोर्स चल रहा है. राइट. वो क्या है सर व्हाट्सएप कोर्स? व्हाट्सएप कोर्स में क्या होता है सर, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट्सएप इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म. ठीक है. और व्हाट्सएप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इवन एज अ बिजनेस ओनर इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट्सएप बिजनेस करके एक अलग से ऐप आता है, आपको पता होगा. तो एज अ बिजनेस ओनर हो, अगर आपका साड़ी का शॉप है या कौन सा भी रिटेल स्टोर है, यू कैन क्रिएट अ कैटलॉग करके वहाँ पे ऑप्शन है. वहाँ पे अच्छे से आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. और वो लिंक कहीं पे भी शेयर कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे शेयर करो. और इफ समवन इज इंटरेस्टेड, डायरेक्टली वो आपको एंक्वायरी वहां से जनरेट हो सकता है. और इन फ्यूचर अभी व्हाट्सएप वहाँ पे पेमेंट गेटवे का भी इंटीग्रेशन चल रहा है व्हाट्सएप का. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जियो के साथ टाई अप हो गया है फेसबुक का, एंड व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक नाउ. राइट. तो फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है जियो में. अभी जियो का टास्क क्या है इंडिया में, दे विल बी डूइंग टाई अप विद दिस ऑल रिटेलर्स, छोटे मोटे रिटेलर्स दुकान है ना, उनके साथ टाई अप करेंगे और व्हाट्सएप पे उनको लाएंगे, और छोटे छोटे स्टोर्स. ठीक है. तो दे विल बी गिविंग कंपटीशन टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिकॉज व्हाट्सएप अभी घर घर में पहुंच गया है. ठीक है. तो एज अ बिजनेस ओनर अमेजॉन everyone has WhatsApp. राइट. तो इजीली दे कैन रीच आउट टू पीपल, और वो टास्क लिया है रिलायंस ने. ठीक है. इसलिए फेसबुक और रिलायंस का टाई अप हो गया है. ठीक है. दैट्स द रीजन दे हैव इन्वेस्टेड इन जियो एक्चुअली. ठीक है. तो ऑब्वियसली होपफुली जल्दी आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट्सएप पे अभी आपने बोला कोर्स का, राइट. तो यहाँ पे कोर्स कैसे लॉन्च करे सर, व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग. ठीक है. और यहाँ पे दे विल क्रिएट अ ग्रुप इन व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करेंगे, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल रहेगा दे विल कीप ऑन पोस्टिंग देयर. और वीकली क्या करेंगे, दे विल टेक अ वेबिनार, जैसे अभी जूम है, गूगल मीट है, वहां पे दे विल टेक अ वेबिनार. ठीक है. और उसी ग्रुप में वो लिंक शेयर करेंगे. तो यहाँ पे कैसे लोग ईमेल बीमेल ज्यादा यूज नहीं कर रहे, बट व्हाट्सएप दे आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग. तो व्हाट्सएप इज इजीएस्ट मेथड टू रीच द ऑडियंस. ठीक है. वहीं से वो इमीडिएटली ज्वाइन हो सकते हैं मोबाइल के थ्रू ही, आपका क्लासेस हो या जो भी हो. ठीक है. तो एक तो इंटरेक्टिव हो जाएगा वो क्लास. ठीक है. किसी को कुछ डाउट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही चैट कर सकता है. राइट. सो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म नाउ डेज. व्हाट्सएप में भी आप यू कैन लॉन्च योर कोर्स. आपको वेबसाइट होने की भी जरूरत नहीं है आजकल. आपने पेमेंट गेटवे ओपन किया, ठीक है, उसका लिंक वहाँ पे डाल दो, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर दिस वन कोर्सेस. वेबसाइट का भी इम्पोर्टेंट बता दो सर. यस. वेबसाइट देखो सर, वेबसाइट के वजह से ही आपका गूगल प्रेजेंस आ जाता है. ठीक है. और एज अ बिजनेस आपका वेबसाइट होना बहुत जरूरी है.
ठीक है, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट ही नहीं है तो आपका गूगल पे प्रेजेंस नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपका नाम गूगल पे नहीं आएगा, इट मीन्स योर बिजनेस डजंट एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। ठीक है, तो वेबसाइट एक क्या करता है, आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो, या फिर आप ब्रोचर आप प्रिंट करते हो, वही आप ऑनलाइन लिंक या शेयर कर सकते हो। अभी व्हाट्सएप पे आप आपका वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो, या फिर आपके कोई प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का एक पेज रहता है आपका, वो पेज का लिंक शेयर कर दो, डायरेक्टली वहां से दे कैन कॉन्टेक्ट यू। वहां पे वेबसाइट पे ही आप लाइव चैट ऑप्शन इंटीग्रेट कर सकते हो, व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। वहां पे एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दे सकते हो, तो वहां से आप लीड्स या फिर सेल्स अच्छे से जनरेट कर सकते हो। अभी मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा सर। अभी मेरा वेबसाइट है viominstitute.com। तो वेबसाइट इज अ एसेट फॉर मी। वेबसाइट बनाना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट के बाद आपको उसको प्रमोट भी करना जरूरी है। ठीक है, अभी माय वेबसाइट इज एसेट फॉर मी, वहां से नहीं बोलोगे तो भी मंथली अराउंड मेरा 1 to 1.5 लाख वहां से अर्निंग होता है। क्योंकि मेरे 80% इंक्वायरीज मेरे वेबसाइट से आते हैं, क्योंकि मैंने उसका SEO किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी SEO मतलब क्या है, ऑर्गेनिक वे में आपका प्रेजेंस गूगल के टॉप लिस्टिंग में आता है। मतलब सपोज अभी इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेलगाम, तो वहाँ पे मेरा आपका प्रेजेंस दिख जाएगा गूगल के फर्स्ट पेज पे, वियॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो वहाँ पे क्लिक करके एनीवन कैन विजिट योर वेबसाइट एंड दे कैन कॉन्टेक्ट यू। तो वहां से आपको लीड्स मिल रहा है। और गूगल से जो आपके ऑडियंस आ रहे हैं वो टाइम पास के लिए कोई गूगल नहीं जाता। इफ दे रिक्वायर्ड देन ओनली दे आर सर्चिंग ऑन गूगल। तो तब आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। अभी मार्केटिंग में देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग। ठीक है, पुश मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, जहां पे हम हमारा प्रोडक्ट पुश कर दे। भाई देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता हूँ करके मैंने बड़ा सा होर्डिंग लगाया वहां पे। भले ही उसको इंटरेस्ट है नहीं है वो मुझको नहीं पता, बट मैं शो कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग माई प्रोडक्ट। तो वहां पे कन्वर्जन रेशियो कम होता है। ठीक है, वेयर एज अभी समझो गूगल पे कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अभी गूगल पे कौन सर्च कर रहा है, ऑलरेडी ही इज इंटरेस्टेड, दैट्स द रीजन ही इज सर्चिंग ऑन गूगल। आपको बस उसको पुल करना है, इतना है आपके पास। सो दैट इज पुल मार्केटिंग। पहले इंटरेस्ट है, मतलब 50% कन्वर्ट भी हो गया, कन्वर्ट हो गया वहीं पे। तो पुल मार्केटिंग में क्या है सर, कन्वर्जन के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला 50% कन्वर्टेड है, आपको बस थोड़ा आपको कन्विंस करना है, वो आपका कोर्स ज्वाइन करेगा या आपका प्रोडक्ट ले लेगा। ठीक है, तो वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ बिजनेस पर्सन आपका वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, इन दिस फील्ड, ठीक है, दिस सिचुएशन में। तो मेकिंग अ वेबसाइट इज इजी और टफ सर? अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वैसे इजी है, इजी। अभी इवन देखो, इवन आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, बट इवन आई कैन डिजाइन अ वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है वो मैं बना सकता हूँ, बट वहां पे आपको इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी, बेटर आप आउटसोर्स करो। ठीक है, डेवलपर्स है मार्केट में, या फिर अभी हमारा कंपनी है, हम भी वी प्रोवाइड अ वेबसाइट डिजाइन सर्विस एंड ऑल। ठीक है, सो बेटर यू आउटसोर्स, मतलब आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। नहीं तो इफ यू स्टार्ट विद स्क्रैच एंड यू स्टार्ट मतलब ट्रायल एंड एरर करके देखते रहोगे तो 6 महीने वहीं पे निकल जाएंगे आपके। तो बेटर क्या है, आप आउटसोर्स करो, जो भी एक्सपर्टीज है लेट देम डू दैट, क्योंकि एवरीवन हैज दैट एक्सपर्टीज। अभी सभी मैं करूंगा मतलब नहीं होगा, राइट। सो अभी देखो, मैं वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूँ बट मैं नहीं करता, मैं बस डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस करता हूँ। उसको प्रमोट कैसे करना है वो मैं देखता हूँ। मेरे डेवलपर टीम मेरी है जो वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल वो करते हैं। ओके सर, thank you for your time and thank you for your valuable input, sir. We'll come to this session, the end of this session, and I hope all the students and the parents also, उनको समझ में आएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग का करियर अपॉर्चुनिटीज उनको या उनके बच्चों के लिए सही है या नहीं। Okay. अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपका वेबसाइट बोल सकते हैं सर आप? Yes, you can Ednab, you can visit my, if you are in Belgaum, you can come to Congress Road, above MasterChef. I have my office, or else you can visit my website www.viominstitute.com. Okay. ठीक है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो। Okay sir. Sir, thank you very much. Thank you sir. I hope you had a good time. Yes, sure. It was a great time, sir. Yeah. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.